Okay, when we pick it here, so outside molecules will pull the thread outward and it will become circular. है ना? Prick at center है ना? With needle. Other example already we have discussed, paint brush का. All right. So other example we already discussed, painting brush is inside the liquid. The bristles of the brush wave freely. Bristles उसके ऐसे दूर दूर होंगे liquid के अंदर. When the brush is taken out of the liquid, surfaces are formed between the bristles, and to minimize the area, they stick together. ऐसे हो जाएंगे. They will just stick together to minimize the surface area when you take out. So that is the phenomena of surface tension, to minimize the area. All right. Now surface energy, we are going to discuss what is the surface energy. Again, same diagram. Suppose deep inside the liquid there is molecules, net force will be 0 because it will be attracted from all the directions equally. But top molecules on the top surface, they have the net downward force. All right. Suppose you want to increase the surface area, wider container mein, you have to bring some more molecules on the top. You have to do the work against the net downward force. That work is stored in the form of potential energy on the top surface of the liquid. They have some extra energy. Top surface of the liquid have some extra energy, which is called surface energy. है ना? अंदर से surface area बढ़ाना है, अंदर के molecules को surface पे लाना है, जहाँ पे net force, you have to work against the net downward force. Your work will increase the energy of the molecules of the top surface. That extra energy possessed by the molecules is called surface energy. Surface energy is related to surface tension. Surface energy का symbol U रहेगा और W भी ले सकते हैं. Work done है, हम जो work कर रहे हैं वही मिल रहा है उनको molecules को. तो let's see how it is related to the surface tension. So we'll take the derivation भी important है. देखो, we take the wire frame, उसमें एक liquid film हमने form कर ली. यहाँ पे movable, ये मूवेबल आर्म है, इसकी लेंथ एल लेनी है. ये वाली लेंथ का रोल नहीं है, जितने मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में उतनी. तो सपोज यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर, दे विल पुल द आर्म इनवर्ड टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. अगर तुम छोड़ दोगे ना, ये मूवेबल आर्म यहाँ आ जाएगी, बिकॉज सरफेस के मॉलिक्यूल्स अंदर, दे आर टेंडिंग टू मूव इनवर्ड to reduce the, because they are under the force, under the inward force of the remaining molecules. So it will minimize the surface area from both sides. एक front side है, एक rear side है, but तुम्हें force लगा के रखना पड़ेगा if you want to, if you doesn't want to go this inside. ये surface, ये force due to surface tension है, उतना force लगाना पड़ेगा. Now suppose you are moving slightly and increasing the distance d. You have to do work. अभी तक इतने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा सरफेस बन गई, इसका सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कुछ आएंगे अंदर से, तो यू हैव टू डू वर्क. दैट वर्क विल बी इंक्रीजिंग द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड. वर्क कितना होगा देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पहले सरफेस टेंशन से फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी लेंगे, एक फ्रंट, एक इधर से लेंथ है, एक बैक साइड से. टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद एयर, एक टॉप एंड बॉटम, तो इसलिए 2 लिखना पड़ता है यहाँ पर. तो फोर्स इज S into 2L. Then work done by the external force to pull the wire by the distance d. Force into displacement. Force कितना निकाला, surface tension into 2L, d the distance. तो 2L into d
द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इधर से बड़ी और बैक साइड से बड़ी, तब L इंटू डी इधर से बड़ी, L इंटू डी बैक साइड से बड़ी, तो 2 इंटू L इंटू डी। इसको हम A लिख रहे हैं या डेल्टा A लिख रहे हैं? A लिखो या डेल्टा A लिखो। तो A द चेंज इन एरिया ऑफ द फिल्म, and this work done is nothing but a surface energy U. तो U is equal to W is equal to SA, USA हो गया ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और WSA कर लो, तो इजी टू रिमेम्बर द फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए। नाउ सरफेस एरिया कैसे डिफाइन, सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, जूल्स पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस टेंशन का दूसरा यूनिट। Surface tension is equal to the surface energy per unit change in the area. A is the change in area, not the area. चेंज किया हमने एक्स्ट्रा, ये A है, ऊपर से A/2 और नीचे से बैक साइड से A/2, टोटल सरफेस एरिया चेंज कितना हुआ? A हुआ। ऑलराइट, तो सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। ये डेरिवेशन is also important for your examination point of view. You have to derive like this. इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे यूएसए के या डब्ल्यूएसए के। तो भैया हमने दूसरी बुक से लिया है, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² meter is broken into 1000 equal droplets. Calculate the gain in the surface energy, that is U is equal to S into A, और डेल्टा A कर लेते हैं इसको। चेंज इन एरिया, पहले एरिया कितना था 4, डेल्टा A will be A2 minus A1, है ना? U is equal to S into A2 minus A1। ये फाइनल एरिया बढ़ जाएगा, अंदर से भी छोटी छोटी ड्रॉप है ना। नाउ सपोज ये ड्रॉप है, it is in contact this much only. When you take it out, it will be in contact with the all around with the air. Surface area you are increasing. पहले surface area कितना लेना पड़ेगा? This much. A1 will be 4 pi r square. R is the radius. इसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की स्मॉल r ले लो। A2 कितना हो जाएगा? 1000 into 4 pi small r square. स्मॉल r इन कैपिटल R में रेडियस रिलेशन डिराइव करना है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, V1 और ये V2 दोनों इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इक्वेट 1 and 2, क्यूब रूट ले लो, स्मॉल r विल बी कैपिटल R by 10। देखो ये इसमें क्यूब रूट होता है ना, इसलिए या तो ये जैसे हमने 8 लिया था, या 8 होगा या 27 होगा, जिसका क्यूब रूट 125 होगा या 1000 होगा या 1 मिलियन होगा। 1 मिलियन कितना होता है 10%, इसका क्यूब रूट कितना आएगा 100, 10⁻² आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर होते हैं इसमें, जहाँ पे वॉल्यूम इक्वेट करके निकलना पड़ता है। सिंस वॉल्यूम रिमेन्स तो ये रिलेशन आ गया। A2 निकाल लिया हमने 1000 into 4 pi r square। A1 तो पहले ही निकाला होगा कहीं पर, A1 ये 4 pi r square, तो डिफरेंस इज 36। तो यूएसए वाला फार्मूला लगा दो, सरफेस टेंशन दिया हुआ है इतना वाटर का, दिस मच एनर्जी यू टू, दिस मच सरफेस एनर्जी विल इंक्रीज, दिस मच वर्क यू टू डू। वर्क भी पूछेंगे तभी भी इतना होगा। ऑलराइट, ये एससीबी का क्वेश्चन है, एससी वर्मा का शॉर्ट एग्जाम। इसमें एक दो पॉइंट और बता दूं मैं। सपोज ये बिग ड्रॉप, रेन ड्रॉप फॉल हो रही है एयर में, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई, है ना? तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी, एंड दे विल रिसीव द एनर्जी, देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज, सराउंडिंग विल गेट कूलर। कभी कभी रेन के बाद जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, तो उस समय यू फील, इफ यू आर एट द कवर्ड एरिया, यू फील मोर कोल्ड, क्योंकि सराउंडिंग से एनर्जी दे लेते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो सराउंडिंग बिकम्स कूलर। उनका इनका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट सराउंडिंग बिकम्स कूलर। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हीट, एमएस डेल्टा टी, कितनी हीट है, ये वाली हीट यूज कर लेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर यूज करेंगे, तो टेम्परेचर निकाल सकते कितना बढ़ेगा, तो वो बाद में
not now. Similar, one more question similar to this. इसमें एक मिस्टेक होती है, let us see क्या मिस्टेक होती है. देखो, suppose find the work done to blow the bubble of radius r and surface tension T. तो ये सपोज पहले कुछ भी नहीं था, जीरो से ब्लो कर रहे रेडियस r तक. इनिशियल रेडियस इज नॉट गिवन, तो जीरो लेंगे. तो a1 इज जीरो, a2 कितना होगा बोलो? a2 विल बी 4 pi r square. और कुछ भी आएगा? और is it okay or something else? Into 2 also, 2 surfaces, one outside की है, outside में एयर है, और ओके वन अंदर वाली है, और 2 ये अंदर वाली 1 और बाहर की 2 एयर के साथ. 2 surfaces, एक ये वाली surface, एक ये वाली surface. They will show the phenomena of surface tension because these molecules will tend to move inside. जो फिल्म होती है, this is also many molecular thickness. इसके अंदर बहुत सारे molecules होते हैं. हमें जो थिन फिल्म दिखती है ना, they are of many molecular thickness. It is not the single molecular, 2 molecular, 3 molecular, many molecular thickness. तो वो अंदर यहाँ से इधर अंदर जाना चाहेंगे, जैसे इधर अंदर जाना चाहेंगे, तो 2 बस. तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया. चेंज ऑफ एरिया कितना आएगा? 8 पाई आर स्क्वायर. ये मिस्टेक होती है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज बोथ साइड से सरफेस जो है फॉर्म हो रही है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द एयर. ऑलराइट, तो मेजरिंग द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं? देखो यहाँ पे एक ऐसे प्लेट बांध ली, ये वाली, ये यहाँ पे ऐसे बांध ली इसको, यहाँ पर बैलेंस से, है ना. तो ये प्लेट पहले ये वाला वेट नहीं है, पहले ये वेट रखा तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, फिर इसको धीरे धीरे लिक्विड के कांटेक्ट में लाए यहाँ पर. तो मॉलिक्यूलर सरफेस टेंशन की वजह से इट विल पुल इट डाउन. देयर इज द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन हियर. तो जब हम इसको डिटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ेगा, है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फिनोमेना व्हिच कम्स ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आल्सो. तो कितनी लेंथ होगी यहाँ पे? देखो ये यहाँ पे कांटेक्ट में, थिकनेस जो है, थिकनेस नेगलेक्ट कर दो, इधर का एल इतना, यहाँ पर थिकनेस छोड़ दो, एक तरफ से एल, दूसरी तरफ से एल, है ना. तो फोर्स, let W be the extra weight to detach the plate from the liquid surface. So F is equal to surface tension into 2L. S is equal to W upon 2L. W is the extra weight to detach it. जितना उनके जो डिटैच करने में लग रहा है, उस that is the force taken here. That force is equal to extra weight. तो इस तरह से surface tension is measured in the lab. Now we are going to see the angle of contact, and इससे फिर हम लोग सरफेस टेंशन फिनोमेना देखेंगे. कभी कभी टर्म्स यूज होते हैं कोहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, है ना. सपोज वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोहेसिव फोर्सेस. और वाटर सपोज ग्लास में रखा है, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं, है ना. सपोज हम पानी निकाल देते हैं तो दे स्टिक टू द ग्लास surfaces. That is adhesive forces. Adhesive forces are the forces between the molecular different substances. Adhesive में भी D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है. देखो मार्केट में भी adhesive बिकते हैं. They are used to join the two different substances, different bodies, different objects, है ना. या सेम ऑब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट व्हेन यू पुट द लिक्विड देयर तो वो तो डिफरेंट होगा ना. दे आर ज्वाइनिंग विद द लिक्विड, का लिक्विड इज डिफरेंट देन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो एडेसिव वर्ड यूज करते हो आप. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है?
सपोज हमने ये एक ट्यूब ले ली ऐसे, उसमें लिक्विड फिल किया, तो उसकी सरफेस फ्लैट नहीं होती, या तो ऐसे होगी या ऐसे होती। फ्लैट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लिक्विड, फोर्सेस के ऊपर, इसके फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली वाटर एंड ग्लास की ऐसे होती है। मर्करी एंड ग्लास की कॉन्वेक्स अपवर्ड होती। टॉप सरफेस को क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। हियर कॉन्वेक्स अपवर्ड, और ये वाटर है, इसमें देखो H2O मैंने लिखा है, H2O में कॉनकेव अपवर्ड होती। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस बिटवीन देम एंड फोर्सेस बिटवीन द ग्लास। कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है सरफेस कैसे होगी, ठीक है। बट एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पर, और सॉलिड लो विच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, उसके बीच का एंगल। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉलिड इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, ये दोनों नीचे ही, थीटा। दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is called angle of contact. Theta is greater than 90, then molecules of the liquid are attracted strongly themselves and weakly to the solids. ये मर्क्यूरी होंगे ना, उनके molecules they are attracted strongly to themselves and less towards the glass. तो glass की तरफ less attracted होंगे and themselves they will be more attracted. इसीलिए थीटा मोर देन 90 आता है उसमें। और लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कम अट्रैक्शन होता है, ग्लास के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना। तो दैट डिसाइड कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस विल डिसाइड एंगल विल बी ऑब्ट्यूज और एक्यूट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सिचुएशन ये है, ग्लास एंड प्योर वाटर के बीच में एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, तो सरफेस ऐसी होगी कि ऐसी होगी? विच टाइप ऑफ सरफेस विल बी देयर? बोलो। समटाइम्स यू रिप्लाई दिस, ऐसी होगी। ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, टेंजेंट यहाँ आ गया और सॉलिड इन कांटेक्ट विद द लिक्विड नीचे, तो ये नहीं है, इसमें तो 90 है, ऐसी होगी, हेमी स्फेरिकल होगी। टेंजेंट भी नीचे और सॉलिड इन कांटेक्ट विद द लिक्विड भी नीचे। दो सॉलिड, दो पार्ट है, एक तो सॉलिड एयर के साथ है, एक लिक्विड के साथ कांटेक्ट में। तो लिक्विड के साथ कांटेक्ट वो साइड लेनी, ऊपर से नहीं लेना। तो ये नीचे ही है वो भी टेंजेंट, और कर्व टेंजेंट ड्रॉन हियर आल्सो, and solid in contact with the liquid नीचे ही है, थीटा इज इक्वल टू 0। हेमीस्फेरिकल मेनिस्कस बोलते हैं इसमें। थीटा 0, वाटर एंड प्योर, ग्लास एंड प्योर वाटर की थीटा 0 है, हेमीस्फेरिकल सरफेस बनती है। ये टॉपिक कर लेते कल, फिर हम लोग एक्सेस, परसों एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे, थोड़ा सा लगे। थीटा 90, थीटा ग्रेटर देन 90 जब होता है, लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, जैसे मरकरी एंड ग्लास है, थीटा 90 डिग्री है, मोर कोहेसिव फोर्सेस है वहां पर, इट विल नॉट वेट द ग्लास। अगर तुम ड्रेन आउट कर दो मरकरी को, इट विल जस्ट ऑल द लिक्विड विल कम आउट, है ना। रेन कोट, अम्ब्रेला क्लॉथ जो है एंड वाटर के साथ, एग्जांपल दिस रेन कोट एंड अम्ब्रेला का जो मटेरियल होता है वाटर के साथ 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसलिए उसको वेट नहीं करता है, वाटर डजंट पेनिट्रेट इनसाइड। लोटस लीफ एंड वाटर के साथ भी थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। लेस देन 90 किस में होता है? ग्लास एंड वाटर, नॉर्मल क्लॉथ एंड वाटर के साथ पेनिट्रेट कर जाता है ना। जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, डाइंग सब्सटेंसेज आर वेटिंग एजेंट्स, ये वेट करते हैं, है ना, स्टिक हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस पर, और सरफेस टेंशन कम भी कर देते हैं ये। जितना एंगल कम होगा उतना सरफेस टेंशन कम होगा, उतना क्लीनिंग क्वालिटी अच्छी होगी। when they are added to the water, in fact, added to water, angle of contact becomes small so that they may penetrate well and become more effective, है ना।
सोप सोल्यूशन इसलिए सोप या डिटर्जेंट से साफ करते हैं. On other hand, waterproofing agents on the other hand are added to create large angle of contact between water and substance. Waterproofing roof बनाते हैं तो फिर वो वाटर पेनिट्रेट नहीं करता रूफ में. टेरेस में लगाते हैं वाटरप्रूफिंग एजेंट और अदर प्लेसेस आल्सो. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर होता है उसमें. एनसीईआरटी बुक में यहाँ से एक्सप्लेन किया गया. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये मर्करी है ग्लास के ऊपर. तो ये सॉलिड इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, ये टेंजेंट है. ये वाटर की ड्रॉप है. वाटर ड्रॉप पूरी ग्रेविटी की वजह से पूरी नहीं है. ग्रेविटी प्लेस द डिस्टर्ब दिस सरफेस टेंशन. तो ये इधर इसमें एंगल कम है. ये ग्लास इन कांटेक्ट विद लिक्विड टेंजेंट और लेसर एंगल है इसमें. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्लास मंडे विल सी द एक्सेस प्रेशर inside the drop and liquid, then capillary reaction. ये दो टॉपिक बाकी हैं अभी. Monday we'll try to finish then new chapter. All right, shall I end it now? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir.